Hello, student. Let us learn a poem, A Legend of the Northland. Legend means a story that passes through generations, means जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक स्टोरी जाती है। इसका कोई प्रॉपर राइटर नहीं होता, ठीक है, और ये आगे अपने आप लोगों के द्वारा आगे से आगे चलती रहती है। इट इज़ कॉल्ड लीजेंड इन इंग्लिश. So this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. In this story, you will meet an old lady who was very greedy. Because of her greed, Saint Peter grew angry with her. And what was the result? Let us see in this poem. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So we see here that in a northland where days are very small and nights are very long and you can't sleep the whole night. कहने का मतलब यहाँ पर जो दिन है बहुत छोटे हैं और जो नाइट्स हैं बहुत लंबी है. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. So, in this stanza, we learn about the environment, geography of this area. कि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है. यहाँ एक रेंडियर है. रेंडियर इट इज़ एन एनिमल लाइक अ डियर. तो जो स्लेज का मतलब होता है व्हीकल यूज टू ट्रैवल ऑन आइस. इट इज़ विदाउट व्हील्स. और जो रेंडियर को जो इस स्लेज के साथ वो बांध लेते हैं और यहाँ वो स्नो पर ट्रैवल करते हैं. और यहाँ के जो बच्चे हैं दे लुक लाइक बेयर्स कब्स. भालू के बच्चों के जैसे लगते हैं क्योंकि वो फर वाले क्लॉज पहनते हैं एंड दे आर वेरी फनी. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. The poet says here that these children, they will tell you a story. It may be a not true story, but the poet says that you must learn a lesson from this story. इस स्टोरी में एक लेसन है, एक सीख देता है जी लेसन, this story. Once when the god Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार की बात है कि जब सेंट पीटर, who was Saint Peter? Saint Peter was a disciple of Jesus Christ. और जब वो धरती पर रहते थे तो वो लोगों को उपदेश देने के लिए निकलते थे, उपदेश देते थे, जैसा आप जानते हो. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. जब वो ट्रैवल कर रहा था तो फिर एक कॉटेज के आगे आता है और यहाँ एक लेडी रहती है और वो केक बनाती है अपनी भट्टी पर. हार्थ मीन्स भट्टी. वो अपने केक को बना रही है. And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him single one. Saint Peter was very hungry as the day was over, and Saint Peter asked that lady to give him one piece of that cake. Okay, after that let us see here. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. जैसे भी वो केक बनाती है, उसको बेक करती है, तो उसको देखती है बेक करने के बाद उसको लगता है कि जो तो बहुत बड़ा केक बन गया भाई. तो वो एज यू नो शी वॉज वेरी ग्रीडी. वो केक उसको देना नहीं चाहती. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. फिर वो एक और केक बनाती है. जब उसको बेक करती है तो देखती है कि वो भी पहले जितना ही बड़ा होता है. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर बहुत थोड़ा आटा लेती है, फिर एक और केक बनाती है, उसको रोल कर कर बहुत पतला बना देती है और
वो इतना पतला बन जाता है वेफर की तरह, बट फिर वो लेडी उस पतले केक को, छोटे केक को भी नहीं देती, और क्या कहती है, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। वो लेडी कहती है कि जब मैं केक बनाती हूँ, जब मैं इनको खाती हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत छोटे लगते हैं, बट जब इनको मैं किसी को देती हूँ तो ये उसको बहुत बड़े लगते हैं। तो वो केक भी सेंट पीटर को वो नहीं देती और शेल्फ पर रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। सो जो सेंट पीटर को बहुत गुस्से हो जाते हैं, एज द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी, और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है सेंट पीटर को। And he said, you are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. सेंट पीटर कहता है कि तू तो बहुत भाई सेल्फिश है, जो एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में रह रही हो, जिसको खाना मिलता है, शेल्टर मिलता है, फायर मिलती है गर्म गर्म रखने के लिए अपने आप को, and that it means she is not fit for a human being as a human being, because she has not any quality of a human being to help others. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. पर सेंट पीटर उनको श्राप देता है, कहता है कि अब तू जैसे बर्ड्स ना अपना फूड ढूंढते हैं बोर कर करके लकड़ियों में, ऐसे तू करेगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वो लेडी को जब वो श्राप देता है तो वो चिमनी के थ्रू जाती है, जो चिमनी होती है हर्थ की भट्ठी की चिमनी होती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कोई शब्द नहीं बोलती। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और चिमनी के टॉप पे क्या उड़ता है, एक वुड पैकर। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, अब वो एक बर्ड में चेंज हो चुकी थी, क्योंकि सेंट पीटर ने उसको कर्स कर दिया था, श्राप दे दिया था। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, उसके सिर पर एक कैप है जो सेम रह जाती है जैसे उसके पहले होती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ क्लॉथ्स वर बर्न, उसके बाकी के सारे क्लॉथ्स बर्न हो जाते हैं। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, उस फायर की जो फ्लेम होती है उसमें वो ब्लैक हो जाते हैं लाइक कोल। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और हर पेंडू बच्चा उसको जब देखता है जंगल में, जब वो स्कूल जाता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री स्टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, अभी तक भी वो जंगलों में रहती है और ढूंढ ढूंढ के बोर करके खाना वो अपना ढूंढती है। सो इन दिस स्टोरी वी लर्न अ moral that we should not be greedy, as we are the human beings. We should help everyone. When someone comes to us for help, for food, for shelter, we should give him, okay? And we should not be selfish or greedy. As you know, this earth is common to all, and one day we have to leave this earth. So we should love here on this earth with love and care, and we should help others when they are in need. Thank you and have a nice day.